Hello students, how are you? So today's topic which we are going to cover is the topic ratio and proportion. It's an important topic of quantitative aptitude. Quantitative aptitude mein I feel that there are three topics which are very important. From that, the first topic is percentage, second topic is ratio, which we are learning today, and the third topic is average. Okay, so these are the pillars of, you can say, quantitative aptitude. Quantitative aptitude में आप देखोगे तो एक arithmetic होता है, then there is algebra, and then it is geometry. Arithmetic में the most important topics are percentage, ratio, and average. So if you have to be thorough in arithmetic, तो आपको ratio, proportion, percentage और average ये topic अच्छे से आने चाहिए. So today we are going to learn the chapter ratio and proportion. Today is the first part, and the first part we will learn the concept of the chapter ratio and the basic problems related to the chapter ratio and proportion. In the second part, we will cover the difficult level questions of the chapter ratio and proportion. So first, let's start with the concept. Okay. Now, as I told you, this is an important topic. Why it is an important topic? Because ratio and proportion is a base of arithmetic. There are so many chapters in arithmetic which are directly linked to ratio and proportion. For an example, the chapters like time and work, speed, distance, time, partnership, age, mixture allocation, simple interest, compound interest, profit and loss, and data interpretation. These are the topics which are linked to the chapter ratio and proportion. तो अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है तो ही आप इन टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो. इनमें से भी पार्टनरशिप, एज एंड मिक्सचर एलिगेशन, दिस थ्री टॉपिक्स आर प्योर रेशियो बेस्ड टॉपिक. रेशियो के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो ही ये टॉपिक्स आप कर पाओगे. एंड हैंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक from the quantitative aptitude. Now, first of all, let's understand what is ratio. So ratio is basically, it's a comparison of two quantities. मेरे पास अगर दो क्वांटिटी है और अगर मुझे उन्हें कंपेयर करना है, so we can use ratio for comparison. For an example, here you can see one basket, और ये बास्केट में कुछ एप्पल्स रखे हैं. उसमें से कुछ रेड एप्पल्स है and there are some green apples. Now, how many red apples are there? So I can see that there are 4 red apples and I can see that there are 3 green apples. So I can say that कि red apple versus green apple का जो ratio है वो है 4:3 का. Okay, let's take one more example. Here you can see that there is one first example. Here you can see that there is one red ball and here there are 2 green balls. In total, there are 3 balls. From that, one is a red ball and there are 2 green balls. So what is the ratio of red versus green ball? So here I can say कि red versus green का जो ratio है वो 1:2 का है, क्योंकि एक रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है. So from this we can say that in total there are 3 balls. So can we say that out of 3 balls, 1 ball is red, and here can we say that out of 3 balls, 2 balls are green. So red balls कितने हैं? So red balls से 1/3 and green वाले balls कितने हैं? So green वाले balls से 2/3, and the ratio of red versus green is 1:2. Similarly, if we take the second example, here we can see that number of red ball, there is only 1 red ball and there are 3 green balls. It means that out of the total 4 balls, 1 is red, and out of total 4 balls, 3 balls are green. So here, what is the ratio of red ball versus green ball? एक रेड बॉल के सामने 3 ग्रीन बॉल्स है and hence the ratio is 1:3. ऐसे हम रेशियो लिखते हैं. रेशियो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होता है, ये हम आगे देखते हैं, बट इट जस्ट गिव्स अ कंपैरिजन
दो अलग अलग क्वांटिटी को आपको कंपेयर करके बताया जाता है रेशियो में. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स विच यू शुड नो. First thing is that ratio should exist between quantities of the same kind. एक ही टाइप की क्वांटिटी को कंपेयर करने में ही हम रेशियो को यूज कर सकते हैं. एंड while comparing two things, the unit should be similar. अगर हम रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि उनके जो यूनिट्स है वो सेम हो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे एक रेक्टेंगल है सपोज, और उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ को मुझे कंपेयर करना है. सो सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर and breadth of the rectangle is 20 centimeter. So here I cannot compare like this. Why? Because length मैंने मीटर में लिखा है और breadth मैंने सेंटीमीटर में लिखा है. तो इस तरह से आप इनका रेशियो 4:20 नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के यूनिट्स डिफरेंट है. So when we compare ratio, we have to be sure that the units are similar. और एक ही टाइप की चीजों में हम कंपेयर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रेशियो में हम अगर कोई कांस्टेंट ले रहे हैं तो क्या कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो फॉर एन एग्जांपल, देयर आर टू क्वांटिटीज, वन इज x एंड वन इज y, एंड द रेशियो इज 2:3. Okay, so x is to y का रेशियो is given as 2:3. अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है. बिल्कुल जरूरी नहीं है. x can be 2, x can be 20, x can be 2 lakh, x can be 2 crore, anything. बट ये सिर्फ कंपैरिजन बता रहा है कि अगर x 2 है तो y 3 होगा. ठीक है. नाउ x इज इक्वल टू x इज टू y इज 2:3. तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? 2:3 का रेशियो है तो हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को. फॉर एन एग्जांपल, द कांस्टेंट इज m. तो क्या हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन वेरी वेल मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट विद द रेशियो. एक कांस्टेंट m से हम दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट इज अलाउड. सिमिलरली, सपोज द रेशियो ऑफ x इज टू y इज 2:3. तो क्या हम एक कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं दोनों रेशियो को? फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं 2 को m से डिवाइड कर रही हूँ एंड 3 को भी m से डिवाइड कर रही हूँ, सो कैन आई से दिस टू रेशियोज आर इक्वल? यस. सो हम इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं. इट इज अलाउड. फॉर एन एग्जाम्पल, x इज टू y इज वंस अगेन 2:3. सो क्या हम कोई कांस्टेंट से ऐड कर सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, कैन वी डू लाइक दिस? 2:3 can also be written as 2 plus m is to 3 plus m. ऐसा कर सकते हैं? No, that is wrong. Here I can't say that the ratios are in proportion. ये दो अलग अलग रेशियो है. एंड सिमिलरली हम डिवाइड सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. सो ऐसा नहीं कि कोई एक कांस्टेंट से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. ओनली वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. एडिशन, सब्ट्रैक्शन वी कैनॉट डू. रेशियो में नहीं कर सकते. इसका एक एग्जांपल देते हैं. जैसे कि x इज टू y इज सपोज 2:3. अभी जैसे मैंने पहले बताया कि x की वैल्यू जरूरी नहीं 2 है, हो सकता है x की वैल्यू 4 है. सो इस केस में y की वैल्यू क्या होगी? तो हमने देखा कि हमने x जिसका रेशियो 2 था उसको हमने 4 बना दिया. सो 2 का 4 हो गया. इसका मतलब एक ये डबल हो गया है. सो इसको भी हमें डबल करना पड़ेगा. सो 3 बन जाएगा 6. आप देख रहे हैं यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया. किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया. इसका मतलब यह है कि x इज टू y अगर a इज टू b है तो हम एक कांस्टेंट m से दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली हम डिवाइड भी कर सकते हैं बट हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते.
फॉर एन एग्जाम्पल, इफ x इज टू y इज 2:3, और सपोज ये वाली वैल्यू 4 है, x इज सपोज 4, तो ये हमने 2 से 4 कैसे किया, तो +2। सो 3 में भी हम क्या करते हैं, ऐसे +2 करके 5 लिखते हैं। सो कैन आई से 2:3 and 4:5, they are equal? No, they are not in proportion. This is wrong. We cannot do addition, and similarly, we cannot do subtraction. Now, suppose A is to B is 2:3. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 है। वंस अगेन, रेशियोज आपको कभी भी वैल्यू नहीं देता है। यहां पर आप बिल्कुल अज्यूम नहीं करोगे कि ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 है। ए कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन यहां से हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज इन द रेशियो दिस इज गिवन एज ए इज टू बी इज 2:3, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू 2 और 3 तो है, और दोनों को हम एक वेरिएबल दे सकते हैं। सपोज दैट वेरिएबल इज एक्स। So here we can assume let A is equal to 2x and B is equal to 3x. Now this has become the value. इस वैल्यू में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एवरीथिंग वी कैन डू, बिकॉज इसे अभी हमने एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो आगे जाके अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है, so from that we can also find the value of A and we can also find the value of B. तो यहां से अगर ऐसा रेशियो दिया है तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, A is to B is 2:3, इसका मतलब ये भी होता है, इसका एक और आप ऐसे मतलब निकाल सकते हो कि सपोज द टोटल इफ इट इज 5, A is to B is 2:3, तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब ये है दैट आउट ऑफ 5 पार्ट्स 2 पार्ट बिलोंग्स टू A and out of 5 part 3 part belongs to B. If A is to B is 2:3, that means that कि out of 5 part A जो है वो 2/5 है, so out of 5 part 2 part belongs to A and out of 5 part 3 part belongs to B, मतलब B जो है वो 3/5 है। ठीक है, now if A is to B is 2:3, and from that if A is equal to 2, then B is equal to what? So A by B 2/3 है। अगर A की वैल्यू 2 है तो कैन आई से B की वैल्यू 3 होगी? यस, तो आंसर इज B is equal to 3. Now once again, A by B is equal to 2/3, this is given, but here A is not 2, here A is 20. So if A is equal to 20, then what should be the value of B? तो 2 का 20 कैसे बन गया, हमें हर जगह पे मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना, एड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सो 2 का 20 कैसे बन गया, इंटू 10 करके। सो हियर ऑल्सो वी विल डू इंटू 10, सो बी विल बिकम 30, सो आंसर इज 30। नेक्स्ट, इफ बी इज इक्वल टू 15, देन व्हाट इज ए? इसको थोड़ा रब कर देते हैं। सो वंस अगेन a by b is 2/3। अभी b का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू इज गिवन एज 15। नाउ हियर यू कैन सी दैट फ्रॉम 3 to 15 how it has happened. So we have multiplied by 5. So here also we will multiply it by 5. So in that case a will become 10. Next, if a plus b is equal to 10, then what is a and what is t? तो यहां पर आप देख रहे हो कि ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दी है, ए प्लस बी दिया है, दोनों का सम दिया है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो बाय ऑब्जर्वेशंस आपको आराम से पता चल जाएगा कि इफ ए इज टू बी इज 2:3 and if the sum is 10, तो a has to be 4 and b has to be 6।
लेकिन अगर आपसे अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे हो, तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो? तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, देखो, a is to b is 2 is to 3, so from this we can assume that a is equal to 2x and we can assume b as 3x. हमें क्या दिया है? a plus b is equal to 10. So here can I say that 2x plus 3x is equal to 10? So 5x is equal to 10. So x is equal to 2. अगर x 2 है तो हमने a को 2x assume किया है, so a will become 4, and b को we have assumed as 3x, so b will become 6. ठीक है? But after practice, आप just by observation you will be able to find out what is the value of a and what is the value of next. b minus a is given as 6, then what is a and what is b? Once again इसको हम x में convert कर देते हैं. b की जगह पे we will write 3x and in place of a we will write 2x. So 3x minus 2x is equal to 6. This is given to us. So from this we can say that x is equal to 6. और अगर x 6 है तो a जिसको हमने 2x assume किया है वो बन जाएगा 12 and b which we have assumed as 3x will become 18. So answer is a is 12 and b is 18. ठीक है? Now रेशियो तो सबको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द वर्ड proportion मीन्स. नाउ सपोज इफ आई से दैट x is to y is suppose 2 is to 3. नाउ सपोज ये 2 का अगर हम 4 कर देते हैं, मतलब हमने कर दिया इंटू 2, सो 3 जो है उसका इंटू 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा 6. सो हियर x is to y is equal to 2 is to 3 and that is also equal to 4 is to 6. So ये एक रेशियो है 2:3, ये एक दूसरा रेशियो है 4:6, and both these ratios are equal. They and hence these two ratios are said to be in proportion. तो जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो हम ये कहेंगे कि both the ratios are in proportion. So from this we can say that 2:3 is in proportion to 4:6. ठीक है? So this is the difference between ratio and proportion. Ratio क्या था? So ratio is used to compare the size of two things with the same unit, and proportion is used to express the relation between two ratios. Ratio को हम किस तरह से represent कर सकते हैं? Suppose there are two quantities x and y, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x is to y is 2:3. या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x is to y is 2:3. बोथ आर करेक्ट. यहां पर हमने रेशियो को एज अ कॉलन एक्सप्रेस किया है और यहां पर इन द फॉर्म ऑफ स्लैश. सो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग कॉलन और यूजिंग स्लैश. सिमिलरली proportion can be expressed using semicolon or equal to sign. For an example, 2:3 and 4:6. We know that these two ratios are in proportion. तो हम इनके लिए बीच में equal to का साइन डालेंगे, ये भी चलेगा. और you can write like this also, that 2:3 is in proportion to 4:6 using two semicolon. ठीक है? Ratio is an expression whereas proportion is an equation. Next, we'll start with simple questions so that you become familiar with the concept of ratio and proportion. Now, first question. If 1000 is divided between A and B in the ratio 3:2, then what A will receive? ठीक है? तो मान लो कि 1000 रुपीज है और इसको A और B में डिवाइड करना है.
इट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब है कि ए को कितना मिलने वाला है, 3 + 2 is 5 part. So out of 5 part, A is going to get 3 part, and out of 5 part, B is going to get 2 part. तो किसको डिवाइड करना है, 1000 को। तो A को कितना मिल जाएगा, A will get 3/5 of 1000 and B will get 2/5 of 1000। 3/5 of 1000 क्या होता है, इट इज 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। So A will get 600. So answer is 600. और अगर 1000 में से 600 A को मिल रहा है तो B को पक्का मिलेगा 400। So B को मिलेगा 400, A will get 600. Now, next question. We have to divide 782 rupees into three parts. The proportion is half is to 2/3 is to 3/4। मतलब 782 रुपीज के 3 टुकड़े करने हैं, एंड इट शुड बी डिविजिबल, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू दिस 3 proportion। This is the question. Now, what is the difference between the previous question and this question? प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने 1000 को डिवाइड किया था 3:2 में, यहां पर हमें 782 को डिवाइड करना। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि ये जो रेशियो दिया है ना, ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इट इज नॉट अ होल नंबर। पहले वाला होल नंबर था 3:2, तो समझ में आ रहा था, ये कंफ्यूज कर रहा है। सो क्या करेंगे इसको, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू अ होल नंबर। और ये रेशियो को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो होल नंबर में ये तभी कन्वर्ट होगा व्हेन वी विल गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर। तो हमें कुछ तो करके ये डिनोमिनेटर को हटाना है। तो डिनोमिनेटर को हम कैसे हटा सकते हैं, नाउ एज आई टोल्ड यू कि हम रेशियो में कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सभी रेशियो को हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू थिंक दैट विच नंबर you will multiply so that you can get rid of the denominator। तो डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है, सो द नंबर्स आर 2, 3 and 4। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है 2, 3, 4 का एलसीएम, ताकि हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और अपना ये जो रेशियो है ये एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। Now, how to find the LCM of 2, 3 and 4? So 2 is a factor of 4, तो ये 2 को आप इग्नोर कर सकते हो। अभी 3 और 4, तो 4 का टेबल बोलो, 4 1 जा 4। क्या 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं। 4 2 जा 8। 3 के टेबल में 4 सॉरी 8 आता है, नहीं। 4 3 जा 12। 3 के टेबल में 12 आता है, यस। सो द LCM of 2, 3 and 4 is 12। तो हम क्या करेंगे, तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 एंड 12, sorry it is not 12 divided by 3, it is 12 into 2 divided by 3, so it is 24 by 3, so it is 8 and this will become 9। So the ratio is 6 is to 8 is to 9। रेशियो इज 6 is to 8 is to 9। क्या ये जो रेशियो है 6 is to 8 is to 9, ये एग्जैक्टली इसके बराबर है, यस दे आर एग्जैक्टली सेम। दिस टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, इट्स वन एंड द सेम। तो हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो रहा है, सो इट इज 6 + 8 + 9, कितना हो जाएगा, 6 + 8 14, 14 + 9 23। इट मीन्स दैट 23 में से 6 पार्ट बिलोंग्स टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज 6/23 ऑफ पूरा नंबर कितना है, 782। सो इट इज 6 into 782 divided by 23।
ओके 23 के टेबल में 782 डिवाइडेड बाय 23 करते हैं, कितना होता है? 23 टू जा 46 एंड 23 थ्री जा 69, 69 आ जाएगा 9, 92, 23 फोर जा 92, so it is 34, 34 into 6, 34 into 6, 42204. So first part is 204. ठीक है, अगर आपको सेकंड पार्ट पूछा होता तो आप क्या लिखते? आप ऐसा लिखते, सेकंड पार्ट इज 8/23 into 782 and third part is 9/23 into 780. क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट पूछा था इसलिए हमने उसकी वैल्यू निकाली एंड द आंसर इज 204. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो व्हाट वी लर्नड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि जब भी रेशियो ऐसा दिया हो तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर दे. कैसे कन्वर्ट करोगे? जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लोगे और रेशियो को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे. नेक्स्ट, a is to b is 5 is to 6. ये दिया है आपको, a is to b is 5 is to 6, b is to c is 6 is to 11. आपको निकालना है a is to b is to c, मतलब तीनों लोगों को साथ में बिठा देना है. Now here if you see the first ratio, in first ratio there is a comparison between a and b, and in the second ratio there is a comparison between b and c. ये दोनों रेशियो में b is the common element और जो कॉमन होगा उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. तो आप देख रहे हो यहाँ पर b की वैल्यू 6 है एंड हियर b का वैल्यू 6, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो आंसर हम एज इट इज लिख देंगे. सो a is to b is to c is, a के साथ 5 लिखेंगे, b को 6 दे देंगे एंड c को 11 दे देंगे. सो आंसर इज 5 is to 6 is to ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, in the next question, a is to b is given as 2 is to 3, b is to c is given as 6 is to 11. You need to find a is to b is to c. The only difference between the previous question and this question is that कि पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉमन एलिमेंट था उसकी वैल्यू सेम थी. हियर द कॉमन एलिमेंट इज b और b का यहाँ पर वैल्यू 3 है, यहाँ पर वैल्यू 6 है. तो दो चीज कर सकते हो, या तो ये 3 का 6 बना दो या फिर ये 6 का 3 बना दो. डिवीजन करना डिफिकल्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन करना इजी होता है. तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 6 बनाएंगे. कैसे बनाओगे? इंटू 2 करके. गलती से भी प्लस नहीं करोगे, आप करोगे मल्टीप्लाई. तो दिस इज 4 is to 6. नाउ हियर यू कैन सी नाउ द वैल्यू ऑफ b इज 6 इन बोथ द रेशियोज. तो अपना आंसर आ जाएगा. a को क्या दे देंगे? अभी a को 2 नहीं लिख सकते. नाउ a is 4, b is 6 and c is 11. So answer is 4 is to 6 is to 11, option number 3. Next, here a is to b is given as 3 is to 4, b is to c is given as 5 is to 9, c is to d is given as 16 is to 15. ठीक है, you need to find a is to d. मतलब here you can see that there are 4 different quantities. One is a, one is b, one is c, one is d. ab का रेशियो दिया है, bc का रेशियो दिया है, cd का रेशियो दिया है. आपको फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना है. तो जब भी फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना होता है, द फास्टेस्ट वे, द क्विकेस्ट वे थ्रू विच यू कैन डू इज, आप कुछ ऐसा कर सकते हो. देखिए, a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी. ये कितना होता है? देखो बी भी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एंड में? a इज टू डी. तो क्यों ना हम a इज टू डी फाइंड आउट करने के लिए ये सब वैल्यूज ही डाल दें. सो a इज टू b इज गिवन एज 3 इज टू 4, b is to c is given as 5 is to 9, c is to d is given as 16. This is nothing but a is to d.
15 15 cancel, 4. So answer is 4:9. Option number E. ऑप्शन इज ए। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना है, तो और कुछ भी नहीं करना है, आप सभी रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब आपको ये चारों को कंपेयर करना है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। फिर उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जरूरी होता है कि हम जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको सेम बनाएं। कैसे करेंगे? लेट्स सी। नाउ वी आर फाइंडिंग ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। देखिए, हमारा काम क्या है? जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हमें सेम रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ए इज टू बी एंड बी इज टू सी में द कॉमन एलिमेंट इज बी, और यहां पर बी की वैल्यू 4 है, यहां पर बी की वैल्यू 5 है। दोनों को सेम करेंगे तो वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20। तो दोनों को हम 20 बनाने की कोशिश करते हैं। 4 को 20 कैसे बनाओगे? इंटू 5 करके। और यहाँ पर 5 को 20 कैसे बनाओगे? इंटू 4 करके। अगर यहाँ पर इंटू 5 कर रहे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, और हियर इफ यू आर डूइंग इंटू 4 तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। दिस इज 15 इज टू 20 एंड दिस इज 20 इज टू 36। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन बोथ द रेशियो बी जो है उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है 20। नाउ हियर इन द सेकंड एंड थर्ड रेशियो सी इज द कॉमन एलिमेंट। सी की यहाँ पर वैल्यू 36 है और यहाँ पर वैल्यू 16 है। So the next step is to take the LCM of 36 and 16. तो 36 and 16 का LCM क्या होता है? तो इन दोनों को 4 से डिवाइड कर देते। So 36/4 is 9, 16/4 is 4. तो this is the LCM. ये LCM है। कितना है LCM? 4 into 9 into 4. 4 into 9 into 4 कितना होता है? 36. 36 into 4 is 140. So 144 is the LCM. अच्छा, 36 को 144 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 करना पड़ेगा। सो हियर ऑल्सो विल डू इंटू 4, एंड 16 को 144 बनाने के लिए इंटू 9 करना है। सो हियर ऑल्सो विल डू इंटू 9। सो इट इज 144/1। सब प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं। अभी गड़बड़ क्या हो गया? बी को हमने यहाँ पर 80 बना दिया, लेकिन यहाँ पर तो बी 20 रह गया। तो इसको भी वापिस 80 बनाने के लिए इंटू 4। अभी सब ठीक हो गया है। सो वी कैन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी एस। ए की प्लेस पे विल राइट 60, बी की प्लेस पे 80, सी इज 144 एंड डी इज 135। दिस इज द आंसर। क्या ऐसा ही करना पड़ेगा ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालने के लिए? नहीं, एक और मेथड है, वो आप ट्राई कर सकते हो। दैट ऑल्सो आई एम शोइंग इट टू यू। उस मेथड में आपको क्या करना है? अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है, तो एक तो ये मेथड था जो मैंने अभी बताया। सेकंड मेथड वी ऑल्सो विल सी कि कैसे कर सकते हैं आप इसको। इस मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए। Here we will write all these four quantities A, B, C. First में A is to B is written as 3 is to 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 and 4. B is to C is 5 is to 9, तो नीचे नीचे लिखेंगे, एक ही लाइन में नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5 and 9. C is to D is 16 and 15, तो C के साथ 16, D के साथ 15. ठीक है, ऐसा बना दिए। नाउ ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, ये सब खाली जगह हमें भरनी है। कैसे भरेंगे? तो ये जो जगह खाली है यहाँ पर, इसको हम उसके नेबर के साथ भर देंगे। तो इसका नेबर कौन है? 4। सो हियर ऑल्सो वी विल राइट 4। सिमिलरली ये वाली जगह खाली है, इसका नेबर कौन है? 4। तो हियर ऑल्सो विल राइट 4। नेबर के साथ रिप्लेस करो। दिस प्लेस इज एम्प्टी, सो हियर वी विल राइट इसका नेबर है 9, विल राइट 9।
ये जगह भी खाली पड़ी है, तो नेबर ऑक्यूपाई कर लेगा, सो 5 आ जाएगा। दिस टू प्लेसेस आर ऑल्सो एम्प्टी, तो इसको भी नेबर ऑक्यूपाई कर लेंगे, सो दिस इज 16 एंड 16। ठीक है, तो अभी हमें a इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 5 × 16, b की वैल्यू हो जाएगी 4 × 5 × 16, c इज 4 × 9 × 16, d इज 4 × 9 × 15। ये करोगे तो आपको a इज टू बी इज टू सी इज टू डी मिलेगा। लेकिन इसके पहले भी एक चीज हमको ध्यान रखनी है, अगर इन चारों में कुछ भी कॉमन है तो उसको निकाल दो, ताकि हमें बाद में सिंप्लीफाई ना करना पड़े। क्या ये चारों के चारों में कोई भी चीज आपको कॉमन दिख रही है? जैसे कि ए में 3 है लेकिन बी में नहीं है, सो दैट इज नॉट कॉमन। ए में 5 है, बी में भी 5 है, लेकिन सी में नहीं है। अच्छा, ए के अंदर 16 है और 16 में एक 4 छुपा है। अभी आप देखो, ए में 16 है, बी में 16 है, सी में 16 है, डी में 16 नहीं है, तो 16 नहीं निकाल सकते। लेकिन 16 के अंदर एक 4 पड़ा है, तो वो निकाल सकते। तो देखो यहाँ पर 4 है, इसको निकाल दो, यहाँ से एक 4 निकाल दो, यहाँ से एक 4 निकाल दो, और 16 में से 4 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये निकाल दिया। और कुछ है कॉमन किसी में? नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 15, 15 × 4 60, 5 × 16 80, 16 9s are 144, 15 9s are 135। आ गया जो पहले आया था, सेम आंसर। ठीक है, सो इफ दे आस्क यू टू फाइंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो आप ये मेथड करो। एंड इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट फर्स्ट वन वर्सेस लास्ट वन, तो सीधा रेशियो को मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। नाउ हियर व्हाट इज गिवन, दैट a is to b plus c is 2 is to 3, and b is to a plus c is 1 is to 4. This is given. You need to find a is to b is to c. तो यहां पर देखो, a की वैल्यू है 2, यहां पर b की वैल्यू है 1। तो हम a को अगर 2 लिख दे और b को अगर 1 लिख दे, तो c कितना हो जाएगा? सो इफ b is 1, from here I can say that b plus c is equal to 3. From this we can say that b is equal to 1. So if b is equal to 1, I can say that c is equal to 2. और यहां से हम कह सकते हैं कि a plus c is equal to 4, उसमें से a 2 है, तो I can say that c is equal to 2. तो दोनों केस में c की वैल्यू 2 आ रही है, so the ratio is 2 is to 1 is to 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। Here a is to b plus c is given as 2 plus 2 is to 3, and b is to a plus c is given as 3 is to 7. Once again you need to find a is to b is to c. तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसा ही कुछ करने का कोशिश करते हैं। वी विल पुट a इज इक्वल टू 2 और b के सामने लिख देते हैं 3। अच्छा, अभी हमें c निकालना है। यहां से हम कह सकते हैं कि b प्लस सी इज इक्वल टू 3, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट a प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 3, उसमें से b ही 3 है, तो कहना इसे c तो 0 बन जाएगा। एंड हियर a प्लस सी इज इक्वल टू 7, उसमें से a 2 है, तो c इज इक्वल टू 5। ये आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है। एक में c का वैल्यू 0 आ रहा है, एक में c का वैल्यू 5 आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू ले? डेफिनेटली व्हेन द वैल्यूज आर डिफरेंट, तो फंस गए हम। यहां पर ये वाली पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, दोनों में c का वैल्यू 2 बन रहा था। यहां पर द वैल्यूज ऑफ c आर डिफरेंट। वाई वाई वाई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां से कैन आई से दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, एंड फ्रॉम दिस रेशियो can I say that a plus b plus c is equal to 1 plus 4, that is equal to 5?
तो दोनों में a प्लस बी प्लस सी 5 बन रहा है, जबकि ये वाले केस में क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी 2 प्लस 3 5 हो रहा है, एंड हियर a प्लस बी प्लस सी 3 प्लस 7 10 हो रहा है। तो एक जगह पे 5 हो रहा है, एक जगह पे 10 हो रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को 10 बनाना है। अभी ये तो ऑलरेडी 10 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट हियर वी विल डू इज कि इसको भी हम a इज टू बी प्लस सी को, जो कि जिसकी वैल्यू 2 इज टू 3 है, तो 2 प्लस 3 5 हो रहा है, हमें 5 का 10 करना है, डबल करना है। तो ये रेशियो का भी डबल कर देते, 4 इज टू 6 कर देते, एंड हियर b इज टू a प्लस c इज 3 इज टू 6। अभी आप देखो 4 प्लस 6 10, 3 प्लस 7 10, तो दोनों जगह पे a प्लस बी प्लस सी 10 बन रहा है। अभी आप कर सकते हो, नाउ यू कैन पुट a as 4, b as 3 और c को कोई भी एक जगह से फाइंड आउट कर लो। तो a प्लस सी 7 है, उसमें से a 4 है, सो आई कैन से दैट c इज इक्वल टू 3, सो द रेशियो इज 4 is to 3 is to 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, दोनों का सम करके चेक करना है। अगर सम सेम है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो उन्हें पहले इक्वल बनाना पड़ेगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2a is equal to 3b is equal to 4c, this is given, you need to find a is to b is to c। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर कैसे एक सेकंड में आंसर निकालना है वो देखते हैं। नाउ 2a is equal to 3b is equal to 4c, this is given to us। मान लो कि ये सबकी वैल्यू एक k के बराबर है, k एक कांस्टेंट है और ये सबकी वैल्यू k के बराबर है। सो फ्रॉम दिस कैन आई से दैट 2a is equal to k, similarly I can say that 3b is equal to k and 4c is equal to k। यहां से हम कह सकते हैं a is equal to k by 2, b is equal to k by 3 and c is equal to k by 4। बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये तीनों रेशियो ए बी सी, तीनों जो क्वांटिटी है ए बी सी को सबको के फॉर्म में लिख दिया। नाउ वी नीड टू फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, ये आपको निकालना है। तो कैन आई से ए की जगह पे हम लिख देंगे के बाई 2, के बाई 3 इज टू के बाई 4। सब रेशियो को के से, के कॉमन है तो सब में निकाल दो, सो आंसर इज 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। So this is the answer, 1/2 is to 1/3 is to 1/4। अच्छा, एग्जाम में आपको ये सब मेहनत नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, देखो ए के साथ कौन बैठा, 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4, और ये सब लोग न्यूमरेटर में है। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो हम कर देंगे उसका उल्टा, उसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। सो ए इज टू बी इज टू सी क्या बन जाएगा, 2 विल बिकम हाफ, 3 will become 1/3, 4 will become 1/, आगे, ठीक है। Now suppose if this is given as, next question, a by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 5, so find a is to b is to c। ये तो और भी सिंपल है, यहां से a is to b is to c क्या बन जाएगा, देखो a के साथ 3 है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो वो 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, वी हैव टू जस्ट टेक द रेसिप्रोकल। So ratio is 3 is to 4 is to 5, as it is 3 is to 4 is to 5। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, सपोज 5a/7 is equal to 3b/4 is equal to 9c/8, ये दिया है। तो यहां से a is to b is to c क्या बन जाएगा, वंस अगेन जस्ट टेक द रेसिप्रोकल, 5/7 बन जाएगा 7/5, 3/4 will become 4/3 and 9/8 will become 8/8। इसका रेसिप्रोकल कर दिया एंड यू हैव गॉट द आंसर।
नेक्स्ट, x is to y is given as 5 is to 2. You need to find 8x plus 9y upon 8x plus 2y. ये निकालना है आप, कैसे निकालोगे? Now, as I told you previously also कि if x is to y is given as 5 is to 2, that does not mean कि x का एक ही वैल्यू है 5 और y की एक ही वैल्यू है 2. x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है. So here, can we put x is equal to 5 and y is equal to 2 in this and can we get the answer? हो सकता है वैसा? Yes, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ये एक रेशियो है और यहां से आप दूसरा रेशियो निकाल रहे हैं. तो जब एक रेशियो से दूसरा रेशियो निकाल रहे हैं तो आप आराम से वैल्यू डाल दो. सो पुट x as 5 and y as 2 and you will get the answer. 40 plus 18 58 and 40 plus 4 44. डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो 29 is to 22. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. जो भी रिस्पेक्टिव उनकी वैल्यूज थी वो हमने डाल दी एंड वी गॉट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹510 को हमें डिवाइड करना है इन ए बी सी सच दैट ए गेट्स 2/3 of what B gets, B gets 1/4 of what C gets. तो उनके शेयर निकालें. तो यहां से A gets 2/3 of what B gets. इसका मतलब क्या है कि A is equal to 2/3 into B. So A is to B is 2 is to 3. Similarly, B gets 1/4 of what C get. तो C को जितना मिल रहा है उसका 1/4 B को मिल रहा है. इसका मतलब है कि C को 4 मिल रहा है तो B को 1 मिल रहा है. करेक्ट. हमें क्या निकालना है? तीनों का शेयर. तो 510 के 3 टुकड़े करने हैं और वो ABC को दे देना है. किस रेशियो में मिलेगा तो वो रेशियो निकालना पड़ेगा पहले तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड व्हाट इज A is to B is to C. कॉमन एलिमेंट इन बोथ द रेशियो इज B. तो B का वैल्यू सेम होना चाहिए. हियर B is 3, हियर B is 1. तो इसको 3 बनाने के लिए into 3. This is 3 by 12. So A is to B is to C is 2 is to 3 is to 12. को डाल दो 2 12. तो इसमें A का हिस्सा कितना है? तो तीनों का सम कर दो. 12 plus 5 17. So out of 17 part, 2 part belongs to A. Out of 17 part, 3 part belongs to B. And out of 17 part, 12 part belongs to C. इंटू 510 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा. 17 3s are 51 60. तो ए का शेयर है 60. अभी आप देख रहे हो सी एक ही ऑप्शन है जिसमें ए की वैल्यू 60 है, बट यहां पर एक ये है प्रॉब्लम, नन ऑफ दिस भी है, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा. अदरवाइज तो हम ऐसे भी आंसर निकाल देते. दिस इज 90, दिस इज 360. सो आंसर इज 60 90 360. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 1300 we have to divide among 4 people P Q R S and उनका रेशियो दिया है. P is to Q, Q is to R, R is to S. क्या है ये? 2 is to 3, 2 is to 3, 2 is to 3. ठीक है. तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसे लिख देते हैं P Q R S. तीनों का रेशियो निकाल देते हैं P Q R S. P is to Q का रेशियो है 2 is to 3. Q is to R का है, सॉरी दिस इज 2 is to 3 and R is to S is also 2 is to 3. ऐसा है. ये जगह भर देते, 3 3 लिख देते. Here we will write 3, यहाँ पर लिखेंगे 2, here we will write 2, here we will write 2.
देखो यहाँ पर टू है सब जगह पे, बट यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है, एस में टू नहीं है। सिमिलरली एस में थ्री है, आर में थ्री है, क्यू में थ्री है, पी में नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई, टू इंटू टू 8, 3 इंटू 2 6, 6 का डबल 12, 3 इंटू 3 9, 9 का डबल 18, एंड 3 का क्यूब 27। सो दिस इज द रेशियो। पी का शेयर क्या होगा? पहला वाला पी है। पी इज गोइंग टू गेट 8 पार्ट आउट ऑफ, पूरे को ऐड कर दो, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 18 38, 38 58 68, 68, वेट वेट, ये 20 हो गया, 20 प्लस 18 38, 48 58, 20, 20 प्लस 18 38, 48 58, 58 प्लस 7, 58 प्लस 7 65, 8/65 है, और टोटल है 1300। हमें पता है कि 65 का डबल 130 होता है, तो दिस इज 20, तो पी का शेयर है 160। क्यू का अगर पूछा होता तो हम ऐसा लिखते, 12 डिवाइडेड बाई 65, आर का पार्ट है 18/65, एंड एस का पार्ट है 7/60। ठीक है, सो हियर आंसर इज 160। नेक्स्ट, sum of 9900 is divided among three people A, B, C such that B gets 2/3 of A plus C. मतलब B is to A plus C is 2:3, ये दिया, and C gets 3/8 of A plus B. This is also given to us. सबसे पहले सीधा सीधा B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 3 डालने से पहले चेक करना है कि A प्लस B प्लस C कितना हो रहा है। हियर फ्रॉम दिस फर्स्ट वन, A प्लस B प्लस C 5 हो रहा है, सेकंड से A प्लस B प्लस C 8 प्लस 3 11 हो रहा है। सो यहां से सम 5 हो रहा है और दूसरे वाले से सम 11 हो रहा है। सो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाता है 55, तो ये जहां पर 5 है ना उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर सम 11 हो रहा है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि काम बन जाए अपना। तो इट इज 22:33 and this is 15:40. चेक कर लेते, सम ठीक हो रहा है। नाउ A plus B plus C is 22 plus 33, that is 55, and as per the second one, A plus B plus C is 40 plus 15, that is 55। दोनों जगह पे 55 है। सो अभी हम A is to B is to C निकाल सकते हैं। A को B को कितना मानेंगे 22, C को मानेंगे 15। नाउ A plus B is 40 और उसमें से B है 22, तो आई कैन से दैट A is 18। तो A is to B is to C is 18:22:15। ठीक है, तो A को कितना मिल जाएगा इसमें से? A का हिस्सा है 18 एंड द टोटल वाज 55। तो 55 में से 18 पार्ट बिलोंग्स टू A एंड द टोटल अमाउंट इज 9900। 11 से डिवाइड करते, सो दिस विल बिकम 5, इसको 11 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम 900। 900 डिवाइड बाय 5, कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो 0 निकाल दो और नंबर का डबल कर दो। सो 900 में से 0 निकालेंगे तो 90, 90 का डबल 180। सो इट इज 18 इंटू 180। 18 इंटू 18 का स्क्वायर होता है 324, सो इट इज 3240 इज द आंसर। वेर इज 3240? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Now let's understand what is third proportion, what is fourth proportion and what is mean proportion. इसे समझने का कोशिश करते हैं। Now suppose there are two quantities x and y and the ratio is 2:3. Now this ratio 2:3
Can I say it is in proportion to 6:9? 2:3 and 6:9 are in proportion. Yes, these two are in proportion. अच्छा, आप देखो यहाँ पर आपको कितने नंबर्स दिख रहे हैं? एक है 2, एक है 3, एक है 6, एक है 9. So you can see that there are 4 different numbers, and hence this is called as fourth proportion. 4 डिफरेंट नंबर है, तो चौथे वाले को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन. सो हियर इसको पढ़ते कैसे हैं? तो हम ऐसे पढ़ेंगे दैट 9 is fourth proportion to 2, 3 and 6. कैसे पढ़ेंगे? 9 is fourth proportion to 2, 3 and 6. In short, suppose ratio A is to B and ratio C is to D. Suppose they are in proportion. So here I can say that D is the fourth proportion. और पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते ऐसे हैं that D is the fourth proportion to A, B and C. ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए. You need to find the fourth proportion to 2, 6 and 12. चौथा वाला नंबर निकालना है, मतलब ये वाला नंबर निकालना है. पहले 3 लोग दे दिए हैं, ए बी सी दिया है, आपको डी निकालना है. ये क्या है? a is to, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2:6 is in proportion to 12:1. बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है. ठीक, तो 2 का 6 हो गया इंटू 3, सो 12 का इंटू 3 कर देंगे 36. 36 is the fourth proportion to 2, 6 and 12. Now let's understand what is third proportion and what is the mean proportion. Suppose there is a ratio 2:3 and there is a ratio, there is a ratio 2:6 and there is a ratio 6:18. Can I say these two ratios are in proportion? Yes, they are in proportion, and hence we'll put equal to sign. Now, in this particular proportion, how many different numbers you can see? So you can see that there are basically 3 different numbers. One is 2, one is 6 and one is 18. ये जो 6 है ना, ये 2 बार रिपीट हो रहा है. ये वाला और ये वाला नंबर सेम है. So in this case 18 is called as third proportion. And ये जो 6 है, ये जो बीच वाला नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, उसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन. ठीक है. So what is third proportion? Third proportion, the third proportional of a proportion is the second term of the mean term. Mean term के बाद वाला term. And what is a mean proportion? So mean proportional between two term is a ratio in a proportional which is the square root of the product of this two. ये actually में square root होता है, ये आगे देखते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर पैटर्न ऐसा कुछ है that ratio A is to B is in proportion to B is to C. Proportion means they are equal. So here I can say that C is third proportion to A and B. ये है अपना third proportion. And बीच वाला है, this is called mean proportion. इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैन आई से दैट A into C is equal to B into B. So from this I can say that B square is equal to AC. क्या ये मैं कह सकते हैं? Yes. और इसीलिए ऐसा लिखा है B is equal to under root of AC. That is what it is written, that it is the square root of the product of these two. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, so we will understand. Find third proportion to 4 and 8. Now you need to find the third proportion. So 4, 8. ये 8 repeat होगा यहाँ पर. You need to find the value that will come in the box. Okay. Now 4 का 8, so 8 का 16. Answer is 16. Here you need to find the mean proportion. So first and third term is given. बीच वाली term निकालनी है.
सो मान लो ये बीच वाला टर्म x है, इट इज समथिंग लाइक दिस. हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. So here I can say that x square is equal to 4 into 36, which is equal to 144. So x is equal to. Now let's solve this particular question. Ratio of third proportion to 16 and 26 and mean proportional between 9 and 25. तो आपको दो क्वांटिटी का रेशियो लेना है. अच्छा, और वो दो क्वांटिटी कौन सी है? तो फर्स्ट क्वांटिटी ये है, थर्ड प्रोपोर्शन टू 6 and 26, एंड सेकंड क्वांटिटी इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25. तो आपको ये निकालना है पहले तो थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 and 26, फिर आपको ये भी निकालना है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25. दोनों क्वांटिटीज निकालेंगे और फिर उनका रेशियो लेंगे. ठीक है. सो मान लो कि दिस इज सपोज x एंड दिस इज सपोज y. तो आपको निकालना है x इज टू y. तीन स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप में वी विल फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड स्टेप में वी विल फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, थर्ड स्टेप में दोनों का रेशियो निकालेंगे. ठीक है. तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 16/26 इज इक्वल टू 6/x. So from this I can say that x is equal to 26 into 26/16. 26 का हाफ 13, 16 का हाफ 8, 26 हाफ 13, 8 का हाफ 4. 13 into 13 is 169 डिवाइड बाय 4. यहां पर छोड़ देते हैं x को. Now let's go to y. Now y is the mean proportion between 9 and 25. So इसको हम ऐसे लिखेंगे. From this I can say that y square is equal to 9 into 25. 25 nines are 225, and so y is equal to 15. We need to find x is to y. X is 169 is to 4 and y is 15. ठीक है. तो आंसर बन चुका है, बट यू कैन सी दैट ऑप्शन में ये नहीं दिया है. तो ये जो डिनोमिनेटर है ये गायब है. तो यहां से डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या करो कि दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. So this will now become 169 is to 15 4s are 60. This is the. Now, the next is, if A is to B is a ratio, then A square is to B square is called its duplicate ratio. Square root of A is to square root of B is called as subduplicate ratio. A cube is to B cube is called as triplicate ratio, and cube root of A is to cube root of B is called as subtriplicate ratio. डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करना है? स्क्वायर करना है. ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए क्यूब करना है. सब डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर रूट करना है. सब ट्रिप्लीकेट के लिए क्यूब रूट करना है. एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा. इफ a is to b is 4 is to 9, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो यानी कि आपको ये निकालना है, a square is to b square. तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 18. दिस इज द आंसर. सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b. So it is square root of 4 divided by square root of 9. So it is 2 is to 3. ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे. So a cube is to b cube is equal to 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 720. This is the answer. और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ b. It means cube root of 4 divided by cube root of 9. This is the answer. Very easy. Next. Two whole numbers whose sum is 72 cannot be in the ratio of. दो होल नंबर है और उनका सम 72 है, तो वो कौन सा रेशियो नहीं हो सकता? दिस इज अ वेरी इजी एंड इट्स अ प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. नाउ अगर वो नंबर
का सम 72 है, तो उनका रेशियो क्या नहीं हो सकता? तो देखो यहाँ से सम कितना हो रहा है रेशियो के हिसाब से? 12 हो रहा है। यहाँ से सम 8 हो रहा है, 3 + 4 7 हो रहा है, एंड 4:9, 4 + 5 9 हो रहा है। ठीक है, आपको ये देखना है क्या 72/12 पॉसिबल है? यस। 72/8 पॉसिबल है? यस। 72/7? नो। 72/9? यस पॉसिबल। तो कौन सा रेशियो पक्का नहीं होगा? सो आंसर इज 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन। The number to be added to each of the numbers 7, 16, 43, 79 to make the numbers in proportion. Now there are four numbers. One is 7, 16, 43, 79. Are these numbers in proportion? नहीं, ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। हमें इन्हें प्रोपोर्शन में बनाना है। तो क्या बोला है कि कौन सा नंबर ऐड करोगे सो दैट द नंबर्स कम इन प्रोपोर्शन? तो मान लो हमने सब में x ऐड कर दिया। After adding x in all these numbers, now the numbers are in proportion. तो ऐसा कुछ है, आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है। There are two methods through which you can solve the question. First, कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो and get the answer of x. Second is option elimination. अभी आप देखोगे तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 7 + x into 79 + x is equal to 43 + x into 16 + x। इसको सॉल्व करोगे तो दो प्रॉब्लम है, एक तो 7 into 79 करना है, 43 into 16 करना है, प्लस इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, सो वी विल नॉट डू दैट। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू ऑप्शन एलिमिनेशन। फर्स्ट वी विल पुट x इज इक्वल टू 2 और चेक करते हैं कि क्या ये प्रोपोर्शन में जा रहा है। सो इस इक्वेशन में अगर हम x को 2 डाल दें, सो इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस, 9/18 and here it is 45/81। आर दिस इन प्रोपोर्शन? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है। देखो 9 का डबल 18 हो रहा है, तो 45 का डबल 90 होना चाहिए था, बट ये 90 नहीं है, ये तो 81 है। सो दिस इज नॉट इन प्रोपोर्शन। नाउ लेट्स पुट x इज इक्वल टू 3। सो 10/19 and 45 नहीं सॉरी 46/79 + 380। क्या ये प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं? ये तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे, क्योंकि 19 के टेबल में ना 46 आता है, ना 82 आता है, ना 10 आता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स पुट x इज इक्वल टू 5। 7 + 5 12, 16 + 5 21, 43 + 5 48 and 79 + 5 84। भी इसको चेक करना है तो 12:21, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 3 से डिवाइड करेंगे 7, सो दिस इज 4:7। 48 एंड 84 12 के टेबल में आते हैं, 12 4s are 48, 12 7s are 84, 4:7। Yes, these numbers are in proportion. The correct answer is option 5. Sorry, option 3, answer 5. Next, two numbers are in the ratio of 7:11. If 7 is added to each of the numbers, then the ratio becomes 2:3. तो मान लो कि दो नंबर है x एंड y और उसका रेशियो है 7:11। तो इसमें हमें ऐड करना है 7, तो 7 ऐड कर दिया ऐसे। आफ्टर दिस द रेशियो हैज बिकम 2:3। क्या ये जो हमने किया ये सही है? नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज एक रेशियो में आप कभी भी कुछ भी ऐड नहीं कर सकते इस तरह से, ऐसे 7 + 7 नहीं कर सकते। ये ऐड कब कर सकते हैं? ये ऐड तभी कर सकते हैं when you convert the ratio into a quantity। तो मान के चलते हैं, let the first number is 7x, सॉरी x तो यहां डाल दिया तो 7a, और सेकंड क्वांटिटी को मान के चलते हैं, इट इज 11a। नाउ दिस हैज बिकम इनटू अ वैल्यू, तो इसको अभी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इट वुड बी लाइक दिस, 7a and the second number is 11a,
उसमें 7 ऐड कर देंगे, so the ratio is 2:3. You need to find the smaller number. स्मॉलर नंबर मतलब कौन सा? 7a. तो 7a की वैल्यू निकालनी है. सो इफ वी सॉल्व दिस वी विल गेट द आंसर. a मिलेगा तो 7a भी मिलेगा. So it is 3 into 7a plus 7. So a is equal to 7. If a is equal to 7, 7a is equal to 49. So option B, 49 is the correct answer. Next, two numbers are in the ratio of 3:5. If 9 is subtracted from each, then they become 12:23. Find the numbers. अभी ये जो क्वेश्चन है इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं. पहले तो कॉन्सेप्ट जैसे हमने पहले किया था, टू नंबर्स, लेट्स से द नंबर्स आर एक्स एंड वाई. तो एक नंबर को हम बोल देते हैं 3a, दूसरे नंबर को बोल देते हैं 5a. सो 3a अपॉन 5a, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे. So the ratio is 12:23. You need to find both the numbers. मतलब आपको 3a and 5a निकालना है. So first thing you need to find is a. If you solve this equation, you will get the value of a, and from that you will get 3a, 5a, and hence you will get the answer. लेकिन इस क्वेश्चन में इतना मेहनत करना ही नहीं था. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी नजर ऑप्शन पे होनी चाहिए. Because if you can solve the question using option elimination, then there is nothing like it. बहुत जल्दी आंसर आते हैं. तो आप देखो नंबर जो है उसका रेशियो 3:5 है. तो नंबर कौन से हो सकते हैं? 2346, here the ratio is 1:2. 3355 ratio is 3:5. 3216 ratio is 2:1. 1328 में तो कोई रेशियो ही नहीं बन रहा है. So it is the ratio is 13 and 28 only. 14:28 रेशियो इज 1:2. तो कहां पर है रेशियो 3:5? ऑप्शन बी में. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हाँ, अगर ऐसे दो नंबर्स होते दोनों जगह पे अगर रेशियो 3:5 बनता फिर सॉल्व करना पड़ता. लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल गो टू द पार्ट 2. The ratio of number of boys and girls in a college is 5:6. Boys and girls का रेशियो is 5:6. Boys में there is an increment of 25%. गर्ल्स में देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 30%. डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा तो रेशियो में भी कुछ चेंज होगा. तो यू नीड टू फाइंड द न्यू रेशियो. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं. हियर आई एम शोइंग यू द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. देखो, पहले मान लो कि 5 लड़के थे. नाउ देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 25%. इंक्रीमेंट ऑफ 25% मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट 100 has become 125. And previously, suppose there were 6 girls, and now there is an increment of 30%. It means ki 100 ka 130. So this is the new ratio. If you solve this, you will get the answer. Once again, solve करने के लिए पहले multiply नहीं करना है. पहले जितना हो सके उतना divide करें. तो जो भी common चीजें हैं उसे divide कर दे. So 100 cancel. So it is 5 into 125 is to 6 into 130. दोनों में 5 common है. 130 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 26. So it is 125 is to 26 into 6 is 63156. So answer is 125 is to 156. I hope you have understood the part 1 of the chapter ratio and proportion. In the next session, we will cover more difficult questions of the chapter. Today we have learned the concept of the chapter ratio and proportion. I hope you understood my session. Okay, so that's all for today. Thank you very much.